Okay, birds, just in many cases, sexual reservoirs is not known. The following animals are implicated as a reservoirs. कि जो following reservoirs है कौन सा है तो birds encephalitis, Japanese bee encephalitis, Staphylococcus, triple E, W double E, that all are the birds encephalitis. Pigs, Japanese bee encephalitis, monkeys, yellow fever, rodent, V double E, Russian spring, small encephalitis, that all are the animal reservoirs transmission disease. What are the pathogenesis? So when an infected vector bites a suitable host, the virus is injected into the capillary circulation. जब कोई भी types of the vector bite करता है, जो भी mosquito या कोई भी vector में bite करता है, तो वह सबसे पहले इंजेक्ट कहाँ होता है? ब्लड के कैपिलरी सर्कुलेशन में फाइंड आउट होता है. The virus comes in a contact with the susceptible target cells such as endothelial cells to capillaries, monocytes, macrophages and cells of the RES. मीन्स कि जो क्या कर रहे हैं, वायरस कम्स इन कांटेक्ट विद ससेप्टेबल टारगेट सेल्स. जो ससेप्टेबिलिटी है, जो वायरलिटिक सिचुएशंस है, वो जिसको टारगेट करेगा अकॉर्डिंग टू द वायरलिटिक सिचुएशन. तो एंडोथेलियल सेल्स में कैपिलरीज द्वारा मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस को कवर करेगा एंड कॉल्ड एज व्हाट आरईएस. After replication in endothelial cells and the RE cells, a secondary viremia usually result leading to the infections of the target organs such as what are such as a brain, skin, muscular and the liver depending on the tissue of the tropines. किसको जाके वो viremia cause होगा, viruletic secretions होगा तो brain के साथ skin के layer, muscularate and the liver depending on the tissue toxin. The virus reaches the brain by infecting small blood vessels of the ब्रेन एंड द कॉन्ड्रॉइड प्लेक्सस में जाके. कॉन्ड्रॉइड प्लेक्सस आपको पता है, कॉर्डोइड प्लेक्सस के जो सिचुएशंस है ब्रेन की, आपने सीरियस सिस्टम पढ़ा होगा, ब्रेनियल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो उसमें जो भी ब्लड वेसल्स है वहां पे जाके वहां पे स्ट्रीव करेगा और अपनी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेगा. दिस इज कॉज्ड बाय द फीवर विद और विदाउट द रैशेस. सब टाइप ऑफ द फीवर के साथ और विदाउट रैशेस के साथ हुआ. दिस इज यूजुअली अ नॉन स्पेसिफिक इलनेस रिसेंबलिंग अ नंबर ऑफ अदर वायरल illness such as influenza, rubella and enterovirus type of the infection. तो this is usually non-specific illness. कोई भी type of illness हमें पता नहीं, specific नहीं है. Number of other viral infections such as influenza, rubella कहीं पे भी जाके disease की cause करके secrete करके अपनी activity को start कर देगा. Enterovirus infection, that all are the type of the infectioning condition. The patients may go on to the develop encephalitis or the hemorrhagic fever. वो क्या करेगा? Develop encephalitis cause करेगा और hemorrhagic fever cause करेगा. The encephalitis example triple E, W double E, Staphylococcus encephalitis, Japanese bee encephalitis, that are called as what cause for the disease via the encephalitis. Hemorrhagic fever example yellow fever, dengue, crime and Congo hemorrhagic fever, that all are the hemorrhagic fever observed into the yellow fever. dengue में देखने को मिलेगा. All aprovirus infections occur with the varying degree of the severity. Subclinical infections such are common. अल्फा विरिडियंस फैमिली का स्ट्रक्चर हमने देखे कि जो आरएनए कोज्ड है लिपिड बाइलेयर, दैट इज अ स्पाइक्स आर हियर टू अटैच विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एनवेलप बेस्ड है और आरएनए पॉजिटिव स्ट्रैंड में है, सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव मैनर में है. यहाँ पे सब पॉजिटिव दिखाया गया है तो सही पता चलता है. प्रिंसिपली मेडिकल इंपॉर्टेंट अल्फा वायरस कौन सा है तो वायरस इज क्लिनिकल सिंड्रोम वेक्टर होस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ई मीन्स की encephalitis, abstract, eastern, equine, encephalitis, that is a triple E. Vector कौन सा है? mosquitoes, host कौन सा? birds, and the distribution सबसे ज्यादा अमेरिकन्स में देखने को मिला है. Western equine encephalitis, W double E, vector mosquitoes, host birds, and the distribution North America में. Venezuelan equine encephalitis, that is febrile illness encephalitis observed into the V double E. वेक्टर कौन सा है तो मॉस्किटोज और होस्ट कौन सा है? रोडेंट और हॉर्स. तो वो भी किसमें देखने को मिला है तो अमेरिकन. ये ऑल आर द क्लासिफिकेशन है. वायरस चिकनगुनिया, तो चिकनगुनिया दैट इज अ फेब्राइल क्लिनिकल सिंड्रोम कौन सा है तो फेब्राइल इलनेस, रैश एंड आर्थ्रोलेशिया. आर्थ्रोलेशिया आपको पता ही है कि एनलार्जमेंट ऑफ दैट, जो भी एनलार्ज हुआ है, जो भी कई टाइप ऑफ vessels है वो डैमेज होने के बाद फ्लॉशिया कंडीशंस इज देयर. वेक्टर मॉस्किटोज, होस्ट ह्यूमन, और डिस्ट्रीब्यूशन कौन से कंट्रीज में है तो अफ्रीकन, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिला है.
Then ONN, ononoic, that is febrile illness, rash and athlesia, mosquitoes द्वारा ट्रांसमिट होस्ट प्रीमेट्स मीन्स के प्राइमरी कोई भी जगह पे से ट्रांसमिट हुआ और डिस्ट्रीब्यूशन अफ्रीका में सिंड्यूट्स मीन्स के एसआईएन फेब्राइल इलनेस रैश और एथलेशिया वेक्टर कौन सा है तो मॉस्किटो बर्ड्स तो उसका रिजर्वियर है बर्ड्स है और वो किसमें डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से कंट्री में तो नॉर्थन यूरोप अफ्रीका एशियन ऑस्ट्रेलिया में Milky forests, febrile illness are rare encephalitis वो भी मॉस्किटो द्वारा ट्रांसमिटर होस्ट द्वारा ट्रांसमिट बर्ड्स द्वारा ट्रांसमिटर वो भी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से देखने को मिला है तो अफ्रीका में चिकनगुनिया फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं चिकनगुनिया वायरस तो हाउ इट्स विल बी ट्रांसमिटेड तो द वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय द एडिस इजिप्टिस जो इजिप्टिस जो उसके जो भी मॉस्किटो का नाम है उसके द्वारा वो ट्रांसमिट हो रहा है फुल ब्लॉन्ड डिसीज इज मोस्ट कॉमन टू द एडल्ट को सबसे ज्यादा किसमें इफेक्ट कर रहा है तो एडल्ट में इंक्यूबेशन पीरियड क्या है उसका तो 2 to 3 days के इन्फेक्शन जो भी बाइट करते हैं जो मॉस्किटो के 2 to 3 days के बाद उसका सिम्टम्स अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगा द डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर क्रिपलिंग जॉइंट पेन लिम्फाडेनोपैथी एंड कंजक्टिविटा एंड द रेस्ट जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है Migratory polyarthritis mainly affect the small joints of the hands and the wrist. Migratory polyarthritis mainly affect कर रहा है small joint उसके hand में और तो wrist में. The fever is typically biophagia with a period of the remission after the 1 to 6 days के जो fever typically caused हो रहा है जो period जो होगा 1 to 6 days के बाद हमें देखने को मिलेगा. Maculopapular rash is common the most intestine on the trunk and the limbs that may be decomposed. Hemorrhagic manifestations are observed in some patients. Hemorrhagic conditions is that the native words for the disease in which the patient lies doubled up due to the severe joint pain. Doubled up means कि जितने भी spine swell हो जाएंगे पूरा body कैसे हो जाएगा swell. This is why it is called as double up due to the severe joint pain. The virus first appeared in India in 1963 when it is caused by extensive epidemic in कलकत्ता मद्रास एंड अदर एरियाज के जो वायरलिटिक अपीयरेंस है उसमें सबसे ज्यादा देखने को मिला है देर इज नो एनिमल रिसर्वियर्स फॉर द वायरस के उसके लिए एनिमल रिसर्वियर्स नहीं है जो कोई एनिमल द्वारा नहीं है वो मॉस्किटोस द्वारा ही ट्रांसफर होता है नो वैक्सीन इज अवेलेबल स्टिल इट इज नो वैक्सीन इज अवेलेबल Next is the structure of the flaviviridians. That is another structure of the flaviviridians bilayer E protein capsid and the nucleocapsid protein. Principal importantly flaviviridins virus, the dengue, that is a febrile illness, rash, hemorrhagic fever, shock syndrome. वेक्टर कौन सा है तो मॉस्किटो होस्ट कौन है तो ह्यूमन को वो डैमेज कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रॉपिक्स एंड वर्ल्ड वाइड ट्रॉपिकल कंट्री और सब ट्रॉपिकल कंट्री वहाँ जहाँ समरेटिक पोजिशन वहाँ सबसे ज्यादा मिलती है वहाँ पे उसका रिसर्वियर्स और डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है येलो फीवर YF हेमरेजिक फीवर हेपेटाइटिस जो देखने को मिला है क्लिनिकल सिम्टम्स और मॉस्किटोस वेक्टर प्राइमेट्स और द ह्यूमन अफ्रीकन साउथ अमेरिका Cephalus lucis encephality SLE encephalitis mosquitoes बर्ड और ट्रांसमिशन किसमें देखा गया अमेरिकन में प्रिंसिपली क्या है तो वायरस की जापानीज एंसेफेलाइटिस वेक्टर कौन सा मॉस्किटोस रिसर्वियस कौन सा पिग्स एंड बर्ड्स आर द मोस्ट रिसर्वियस और डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया चाइना जापान साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिला है वेस्ट नाइल वायरस वेस्ट नाइल जो फेब्राइल इलनेस है मॉस्किटोस उसका वेक्टर है होस्ट बर्ड है अफ्रीकन मिडल ईस्ट एंड यूरोप में देखने को मिला है टिक बॉर्न एंसेफेलाइटिस TBE एंसेफेलाइटिस कॉज है टिक्स द्वारा ट्रांसमिट है रोडेंट या होस्ट उनका रोडेंट है और यूरोप एशिया में सबसे ज्यादा देखने को मिला है प्रिंसिपली मेडिकली इंपॉर्टेंट फ्लाविविरिडियंस कौन सा है तो ऑस्माक हेमरेजिक फीवर कॉजिंग हेमरेजिक फीवर वेक्टर टिक्स है वो होस्ट मस्कट्स में देखने को मिला है और डिस्ट्रीब्यूशन साइबेरिया में देखने को मिला है साइबेरियल डेजर्ट्स में सबसे ज्यादा जो वहां तक की जो रेसिडेंटल है उसमें ज्यादा कैंसुअर फॉरेस्ट डिसीज KFD हेमरेजिक फीवर इज ऑब्जर्व वेक्टर कौन सा है टिक्स होस्ट कौन सा है तो रोडेंट एंड ऑब्जर्वेशन किसमें देखने को मिला है तो इंडिया ह्यूमन इन्फेक्शन विद बोथ मॉस्किटोस बॉर्न एंड टिक बॉर्न फ्लेवेंसिस इनिशिएटेड मींस कि दोनों मॉस्किटो द्वारा भी और टिक्स द्वारा भी फ्लेवेंसिस इनिशिएटेड बाय द deposition of virus throughout the skin via the saliva of the infection of the enteroprene जापानीज भी एंसेफेलाइटिस स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी टाइम हमारा इतना नहीं बाकी है कि हम ये कंप्लीट कर सके तो
नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से जापानीज भी इन सब कॉलेज। ओके, तब तक स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।